વિદ્યાર્થી મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે કે તમારો કેમેરા 2-5 મિનિટ માટે ઓપન રાખે કે જેથી આપણે પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરી શકીએ. હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, કાઇન્ડલી ઓપન યોર કેમ ફોર સમટાઇમ્સ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ છીએ. થોડું આપણે 15 મિનિટ મોડી થઈ ગઈ છે કારણ કે આપણા નેટવર્કનો થોડો પ્રોબ્લેમ હતો, એને કારણે પ્રોગ્રામ શરૂ થઈ શક્યો નહીં. પણ હવે આપણી સમક્ષ આપણા મુખ્ય વક્તા શ્રી નરેશ સર હાજર છે અને આપણે પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. નરેશ સર, પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે. ઓકે? Yes, sir. Right. Shall I begin, sir? સર, કેપી કોલેજ ઓફ કોમર્સની સ્થાપના 1946માં થઈ હતી. હાલના 2021ના વર્ષમાં સર કેપી કોલેજ ઓફ કોમર્સ 75 વર્ષ પૂરા કરવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી તેમજ સર કેપી કોલેજ ઓફ કોમર્સ પરિવાર આનંદ અને હર્ષોલ્લાસની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યું છે. આ ઉજવણીના ભાગરૂપે આ કોલેજની ઉડીસા ક્લબ કમિટી અને ICFAI બિઝનેસ સ્કૂલ અહેમદાબાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત આ કેરિયર ગાઈડન્સ વેબિનાર ઇન્ટરવ્યૂ સ્કિલ એન્ડ રિઝ્યુમ બિલ્ડિંગમાં આચાર્ય શ્રી ડૉક્ટર માર્ટિના મેડમ, આજના મુખ્ય વક્તા શ્રી નરેશભાઈ શર્મા સર, ઉડીસા કમિટીના સભ્યો તેમજ વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રોનો હું ડૉક્ટર MN માને સર કેપી કોલેજ ઓફ કોમર્સ સુરતમાં સૌનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના વેબિનારમાં વિદ્યાર્થીઓને ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી સરકારી કે ખાનગી ક્ષેત્રે અરજી કે રિઝ્યુમ એટલે કે CV તૈયાર કરવું પડતું હોય છે. ત્યારબાદ ઇન્ટરવ્યૂ પણ આપવું પડતું હોય છે, જેના માટે સ્કિલ એટલે કે કૌશલ્ય હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. રિઝ્યુમ કઈ રીતે તૈયાર કરી શકાય તેમજ ઇન્ટરવ્યૂમાં સામાન્ય પ્રશ્નો કયા પૂછવામાં આવે તે અંગેનું સચોટ માર્ગદર્શન આજે આપણને આજના મુખ્ય વક્તા શ્રી નરેશ શર્મા સર આપશે. તમામ વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર વિનંતી છે કે આ વેબિનાર પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી શાંતિથી સાંભળશો. તેમજ તે અંગે તમારા કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે તેને અંતમાં તમે પૂછી શકશો. 15 મિનિટ આપણો મોડો ચાલુ થયો છે પ્રોગ્રામ, એટલે 15 મિનિટ વધારે આપણે લઈશું. તમામ વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર વિનંતી કે આ વેબિનાર પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી સાંભળશો. તો આજના મુખ્ય સ્પીકર શ્રી નરેશ શર્મા સરને હું પરિચય આપવા માટે હું મારી કમિટીના મેમ્બર શ્રીમતી CA મોનિકાબેન ચક્રવર્તીને હું વિનંતી કરું છું. ઓવર ટુ મોનિકા મેડમ. Thank you, sir. Good morning, one and all. Today, I take the honor to welcome our esteemed guest, Dr. Naresh Sharma. Sir is a national level sportsman and an accomplished professional with 12 years of rich experience in corporate and academic fields. He worked with different industries like FMCG, microfinance, and education in various functions like business development, sales and marketing management, operations management, placements, corporate relations, and training. He is a recruitment and soft skill trainer and trained more than thousands of students across Gujarat. He has conducted 350 plus student development programs for undergraduate students across Gujarat. He is also a certified trainer for HDFC Bank. He is also a NLP Neuro-Linguistic Programming practitioner. Sir has received a Best Teacher Award for Institution Building 2016 by ICFAI Business School Alumni Federation. His areas of subject interest are personal effectiveness, management, and business communication.
His work area also includes placement, corporate, and alumni relations. We welcome you, sir, again. The stage is all yours. All right, thank you, ma'am. Thank you, sir, for the warm welcome. And sorry being get delayed due to this technical glitches from my side. So Microsoft is very new to me, but I don't know what happened today. So sorry for that. And good morning again, once again, to all the students and sir and ma'am. So let's begin with today's session. And today's session is something, it is not that very rare. It is instead very common, and it is something which is until unless you don't retire from your life, it will be there with you, right? Sir, So you need to. sir, Yes, sir, sorry for interrupt you, sir. sir. Yes, हमारे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सर गुजराती मीडियम के हैं, तो अगर all आप right. पॉसिबल है तो हिंदी में बोल सकते हैं सर. All right, sir. I am non Gujarati, तो I will try to speak in. मैं हिंदी में बात करता हूँ सर. गुजराती मेरे को नहीं आती है. Right. All right. Okay. Sorry for that. So मैं ये बता रहा था जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफी कॉमन है. कॉमन मीन्स कि ये आपकी लाइफ से जुड़ा रहेगा जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते हैं, क्योंकि रेज्यूम बिल्डिंग करना, अपना इंटरव्यू स्किल्स कीप्स ऑन चेंजिंग. फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोसेस होता है, जनरली अपन बोलते हैं प्लेसमेंट प्रोसेस वगैरह हुआ, जीडी होता है, इंटरव्यूज होते हैं. सो ऐसा नहीं कि जीडी प्लेसमेंट्स तक ही लिमिट रहता है. अगर आपको याद हो 2-3 साल पहले जब एसबीआई के चेयरमैन की रिक्रूटमेंट हुई थी, उसके अंदर भी जीडी का पार्ट था, राइट? तो इट इज देयर. एंड अगर एसबीआई के चेयरमैन की रिक्रूटमेंट हो रही है, इट मीन सब लोग 55 प्लस तो होंगे या 50 प्लस होंगे, राइट? सो उनके उसमें भी जीडी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं. सो इंटरव्यू और रेज्यूम बिल्डिंग वो आपके साथ में रहेगा जब तक आप रिटायर नहीं होते, राइट? सो टेकिंग टू इट ऑन इन ए सिस्टमैटिक वे, सर वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन, राइट? यस. ओके. सर वो वहाँ पे जो एरो है वहाँ पे क्लिक कर देना सर. राइट सर. हाँ. सर कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? सर एनी कोई प्रॉब्लम? समय मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अभी हाँ सर. इज इट विजिबल सर? विजिबल. ऑल राइट सर. ओके. ओके, थैंक यू सर. जस्ट यू कैन सर देयर स्लाइड शो इफ अभी पॉसिबल. ओके सर, दिख रहा है अभी? हाँ वो दिख रहा है, लेकिन विंडो दिख रहा है, वो उसका स्लाइड शो नहीं हो रहा है. स्लाइड दिखाई दे रही है लेकिन उनको शो करना पड़ेगा ना सर, नीचे से. वो 68 लिखा है वहां से. ओके. ओके, अभी कोई बात नहीं, चलेगा सर, डोंट वरी. ओके. ओके. सो आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. सी वी ऑल नो कि इंटरव्यू हमको फेस करना पड़ता है, इधर वो जॉब का इंटरव्यू हो चाहे एडमिशन का इंटरव्यू हो. तो अगर अभी आप लोग ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहे हैं
अब आगे जाएंगे तो इंटरव्यू फेस करेंगे किसी भी जॉब को लेने के लिए, तो इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। किसी के पास कोई आइडिया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरव्यू? इंटरव्यू क्यों लेते हैं? उसके बारे में कितना पता है हम लोगों को, ये वो लोग जान सकते। ओके, इसमें दो पार्टीज होती हैं, राइट? एक इंटरव्यूअर और दूसरा कैंडिडेट। तो अपन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तो बेस क्लियर हो जाएगा अपना आगे बढ़ने का। तो जैसे आपने बताया, तो जानने के लिए थोड़ा डीप में बता सकते हैं इसमें आप? और ऑब्जेक्टिव फ्रॉम पैनल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव फ्रॉम पैनल पॉइंट ऑफ व्यू। सी हम जी या सर आप बोलिए, बाद में बोलती हूँ। ओके, ऑल राइट। सो ऑब्जेक्टिव जो होता है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, एम्प्लॉयर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, पहला जॉब जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज कैन यू डू द जॉब। वो इंटरव्यू में ये आपसे पता करने चाहेंगे कि क्या आप ये जॉब कर सकते हैं या नहीं। जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करा है, तो पहला ऑब्जेक्टिव जो होगा इंटरव्यू का, वो ये जानने का होगा क्या आप जॉब कर सकते हैं या नहीं। और वो कैसे पता चलेगा? वो आपके स्किल्स, एबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन, राइट? अगर अकाउंट्स का जॉब है, और अगर आपने और आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो क्वालिफिकेशन मैच नहीं करेगा, आपके स्किल्स मैच नहीं करेंगे। तो पहली चीज होगी कैन यू डू द जॉब। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो पता करना चाहता है रिक्रूटर, वो होता है विल यू डू द जॉब। क्या आप जॉब करना चाहेंगे? उसका मतलब ये होता है इंटरव्यू ये चेक करेगा कि आपका इंटरेस्ट, आपका एटीट्यूड और आपका जो मोटिवेशन है टुवर्ड्स दैट जॉब, वो उसमें वो लोग चेक करते हैं, राइट? तो पहले दो ऑब्जेक्टिव ये हो गए। लास्ट ऑब्जेक्टिव इसमें ये होता है हाउ विल यू फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर पर्सनालिटी। ठीक है, आप जॉब कर सकते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव, ओके, आप सिलेक्ट हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव कि आपकी क्वालिफिकेशन, एबिलिटी, स्किल्स आपकी मैच कर रही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी आप सिलेक्ट हो गए कि आपका इंटरेस्ट है जॉब करने में, आपका एटीट्यूड भी है और आप मोटिवेटेड भी हैं जॉब करने के लिए। बट तीसरा जो प्रोस्पेक्टिव है और जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज क्या आप ऑर्गेनाइजेशन फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. ऑलराइट। सो थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज फिटिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑब्जेक्टिव दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर आर कुछ थ्योरीज थी पहले, जो थ्योरी चलती थी पूरे रिक्रूटमेंट साइकिल में, दैट वो थ्योरी होती थी प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशनल फिट। प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशनल फिट, उसका मतलब ये होता था कि कोई कैंडिडेट है, अगर वो प्रोफाइल से मैच कर रहा है तो उसको हायर कर लेते थे। और ये 2005 या 4 तक आप, या अर्ली 2000 तक चला, उसके बाद ये कंसेप्ट मिट गया। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए अकाउंट्स का जॉब है एक कंपनी में, उस अकाउंट्स के जॉब में क्वालिफिकेशन ये मांगा है कि जो भी कैंडिडेट हो वो बीकॉम होना चाहिए और उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसको टैली आना चाहिए। तो ये प्रोफाइल की डिमांड है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा मिल जाता है जिसने बीकॉम करा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है और तीसरा उसको टैली ऑपरेट करना आता है, टैली चलाना आता है, तो वो पूरा प्रोफाइल मैच हो गया। दैट इज प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशनल फिट। बट ये कंसेप्ट अभी नहीं रहा है। अभी जो नया कंसेप्ट है दैट इज पीपल ऑर्गेनाइजेशनल फिट और पर्सन ऑर्गेनाइजेशनल फिट। तो जो एग्जांपल देता है उसी को मैं वापस यूज करता हूँ। पीपल ऑर्गेनाइजेशनल फिट में क्या होता है, पहली चीज, अगर अकाउंट्स का जॉब है, बीकॉम है, 2 साल का एक्सपीरियंस, टैली आना चाहिए, प्लस वो कैंडिडेट का जो पर्सनली ट्रेट्स हैं, जो भी कैंडिडेट के पर्सनल ट्रेट्स हैं, वो कंपनी के कल्चर से मैच करने चाहिए, राइट? इवन कैंडिडेट बहुत अच्छा है, उसका बीकॉम टॉपर है, उसको टैली के अपडेटेड वर्जन पे काम करना आता है, 2 की जगह उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर अगर पैनल को ऐसा लगेगा कि वो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं कंपनी के कल्चर के साथ में, तो उसको हायर नहीं करेंगे। एंड दिस इज द करंट सिनेरियो इन हायरिंग प्रोसेस। तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, ठीक है, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, मैंने मेरे से 10 क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन के मैंने सही से जवाब दिए, फिर भी आपको हायर नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज उनको जो आपका ये जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, हाउ विल यू फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर पर्सनैलिटी और नेचर और करेक्टर,
इट इज नॉट, वो मैच नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ में। मैं आपको उसको समझाता हूँ छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। मान लीजिए एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल काफी सेल्स का प्रोफाइल है, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोफाइल है। उसके लिए आपका स्किल्स भी हैं, आपकी एबिलिटीज भी हैं, आप क्वालिफाइड भी हैं उस जॉब के लिए, आपको उस जॉब में इंटरेस्ट भी है, आपका एटीट्यूड भी है, मोटिवेटेड भी है, आपको जॉब करना है, ठीक है, और आप सारे क्वेश्चंस का आंसर सही देते हैं, फिर भी आप सिलेक्ट नहीं होते हैं। उस केस में क्या होता है, बिकॉज वो आपको वो क्या करेंगे, वो ये देखेंगे पर्सनैलिटी फिट हो रही नहीं हो रही है प्रोफाइल के अंदर, वो चेक करेंगे कि कैंडिडेट बहुत अच्छा था, मतलब ही वाज द वेरी गुड कैंडिडेट, उसका स्किल्स, उसका एटीट्यूड सब कुछ मैच कर रहा था, बट उसमें सेल्स जॉब करने के लिए जो थोड़ा सा एनर्जी मिसिंग लग रहा था, उसका थोड़ा सा एनर्जी, पॉजिटिव एग्रेशन नहीं था उसके उसके बॉडी लैंग्वेज में या बातों में, उसके जो थोड़ा सा सेल्स में थोड़ा सा एनर्जेटिक लोग चाहिए होते हैं और थोड़े से एग्रेसिव लोग चाहिए होते हैं, वो मिसिंग लग रहा था, राइट। तो आप वो प्रोफाइल के साथ में या फिर वो कल्चर जो है प्रोफाइल का या कंपनी का उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फिर आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, डिस्पाइट बीइंग आप शायद बैच के टॉपर हो, आपका इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा हो, आप झंडे गाड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वो आपको हायर नहीं करेंगे। सो अब ये ध्यान रखना कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको भी फिट होना है, और उसके लिए आपको ट्राई करते रहना है इंप्रूव करने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है from recruiter point of view or HR point of view, that is how will you fit into the organization, आपका पर्सनैलिटी फिटमेंट कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ में, ये आपको ध्यान रखना, राइट। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव पैनलिस्ट का। आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग ए कैंडिडेट? एनी गेसेस, कैंडिडेट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जो इंटरव्यूअर जो चाहता है उसकी ये डिमांड फुलफिल। ओके, वेरी गुड। मैं आपका आंसर सही है, मैं इसको एक शब्द में कह देता हूं, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू गेट द ऑफर। आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू गेट द ऑफर, दैट इज व्हाट। अभी अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, इतना कि व्हाट इज एन इंटरव्यू व्यू पॉइंट। वन, इंटरव्यू को देखने के दो नजरिए हैं मेरे हिसाब से, राइट। सो फ्रॉम कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू को देखने के दो नजरिए हैं। सो पहला नजरिया यह है कि इंटरव्यू क्या होता है, व्हाट इज एन इंटरव्यू। उसके अंदर पहला नजरिया है कि पहली चीज कि आप अननोन पीपल, अननोन जिसको आप जानते नहीं, उन लोगों से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता नहीं कौन है, क्या करते हैं पता होगा, बट कौन है, कितना, क्या चीज है, आप उनको बिल्कुल नहीं जानते, ना प्रोफेशनल लेवल पे ना पर्सनल लेवल, ठीक। सो पहला व्यू पॉइंट कि आप अननोन और स्ट्रेंजर लोगों से मिलने जा रहे हैं। सेकेंड इसका व्यू पॉइंट है, इंटरव्यू क्या होता है, इट इज गोइंग टू अ डिस्कशन, इट्स ए इंटरेक्टिव डिस्कशन होने वाला है इसमें इंटरेक्टिव डिस्कशन होने वाला है, राइट। थर्ड थिंग, इंटरव्यू क्या है, दैट इज इसमें आपको पैनल ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा और आपको जज करेगा या फिर आपका आउटकम निकालेगा, राइट फ्रॉम जब गेट से अंदर चलते हैं। कभी देखना इंटरव्यू रूम म्यूट हो गया सर, म्यूट। Hello, sir. Sir, you are not audible. Hello. Hello. हेलो, Sir, કદાચ sir एक मिनट। સરનું network issue છે કદાચ. I think sir is left. हेलो नरेश सर। Sir is not here, sir.
હલો સર, તમે મ્યુટ છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડી રાહ જોશો. થોડા ગેસ્ટને આપણે નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે એવું લાગે છે, એટલે એમની સાથે વાત થઈ છે, તરત જ જોઈન થઈ જશે. ઓકે. નેટવર્ક આગળ આપણું કોઈનું ચાલે નહીં. हेलो सर, अरे कोई दिक्कत अभी नहीं दिखाई दे रहा है सर. आपका वॉइस भी अभी तो आप दिखाई दे रहे थे ना सर, आपने जब चालू किया तो. वहां से वापस टीम को ओपन कीजिए ना सर. और डाउनलोड नहीं करने का, आप मोबाइल पे ही या डेस्कटॉप पे है? हाँ तो सर उसमें जो डाउनलोड एप्लीकेशन आता है ना, उसके नीचे लिखा होता है ब्राउजर, ज्वाइन एज ए ब्राउजर. उसके नीचे क्लिक. नहीं, आप लॉग आउट हो जाइए ना सर. तो जीएस लिखा है ना, वो जीएल, हाँ वहाँ से लॉग आउट हो जाइए, फिर वापस कीजिए ना सर यूजर आइकन से. हो गया लॉग आउट सर. यूजर आइकन से क्लिक करके साइन इन कीजिए. हाँ, अभी यूज वेब, कोई बात नहीं, अभी अब हो जाएगी सर. वेब स्टार्ट कर दिया ना. मैं वहाँ से अभी कॉल करता हूँ. सर आप जुड़ गए हैं मेरे हिसाब से. क्या लिखा है? आपको देखो दिखाई दे रहा है. नहीं